fearful of a future that seems dark at the moment. The war has robbed them of men, money, and resources, and there isn't much left to sustain on. Someone needs to do something, and soon. Who would be that someone, and what would they do? As the women of Mahabharata, across class, queens and maids alike, grieve their losses in their own ways, they begin to look inwards. They begin asking questions, seeking answers, and mending relationships that never had the chance to properly form due to their former roles. Through the play, the women of Mahabharata write their own narrative in their own terms and begin a new journey that serves their growth, their bond, and independence. Get ready to immerse yourselves in the narrative of these iconic women unfolding before you and enjoy the magic of live theatre. Without much further ado, we present to you Bhor, the life of the women of Hastinapur. Thank you. बहुत बहुत अभिवादन। हमारा नाटक एक युग के अंत से शुरू होता है और एक और युग के आरंभ पर समाप्त होता है। आप हमारे पात्रों से मिलते हैं जब उनके जीवन की सबसे अंधेरी घड़ियां हैं, जब वे शोक के विभिन्न चरणों में चल रहे हैं, कुछ इनकार की स्थिति में, कुछ अपराध की स्थिति में, कुछ अधिक हानि होने का अनुभव करते हैं और कुछ क्रोध और पश्चाताप में जलते हैं। You meet each of them as they come face to face with their truths. Truths that are bitter and painful. Truths that would rather be lies. Truths that no human one would like to accept. You meet them as they grapple with the consequences of their actions, just as you and I do in our lives. Be patient with them. Be kind to our characters. Yes, they should have been wise. Yes, they could have been different. And yes, it is almost too late now. And we wish they didn't have to learn their lessons this way. लेकिन हम जानते हैं, परिवर्तन कठिन होता है। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, और उन्हें भी अब ये पता है कि परिवर्तन आवश्यक और अपरिहार्य है और ये कठिन है। So when you meet them, when you see them, when you hear their stories about their naive mistakes, their pain and their heartbreaks, be kind to them. Walk with them in their journey of change as they reach their hands out to a better tomorrow. They need you to be their witness, to be their guiding light. Bhor, the women of Hastinapur. कंठ जैसे सूखता है, सूखी है परंपरा। अभिमन्यु की हत्या क्या है, क्षत्रियों की हीनता। कलंक है युद्ध महाभारत, ये कलंक है। प्रसंग है करुण रस का युद्ध, ये प्रसंग है।
है कहाँ पर छुपा, भोर नहीं मिल रहा, छत विछत लाश है, कोई और नहीं मिल रहा, है कहाँ पर छुपा, भोर नहीं मिल रहा, छत विछत लाश है, कोई और नहीं मिल रहा, रंग है बहता ये रक्त, अपनों का ही रंग है, कलंक है युद्ध महाभारत, ये कलंक है, प्रसंग है करुण रस का युद्ध, ये प्रसंग है, करुण रस का युद्ध, ये प्रसंग है, करुण रस का युद्ध, ये प्रसंग है। अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। I can't eat, I can't sleep. I can break my head against the walls, but nothing else. Nothing. There is only darkness. I have lost all my sons. All 100 of them. Did I fail as a mother? I don't know. I don't recognize myself anymore. Once, I was the beloved princess of Kandahar, the land of music and art. My father, the king himself, used to discuss with me matters of finance and government. From that land of light, I came to Hastinapur, to the world of Dhritarashtra's darkness. My blindfold was my protest. And into our world of darkness came Duryodhan. Duryodhan, whose hatred for the Pandavas was the cause of his undoing and his doom. Each day during the war, he came to me to seek my blessings. And all I could say was, Yato Dharmastato Jaya. Not one day could I bless him with Vijay Bhava. I begged Dhritarashtra not to use my son as a means to fulfill his desire. And all he could answer with was the cliche, only को कौन टाल सकता है? It is always the mother's fault, isn't it? The father is never to blame. Never. I did my best to save my sons. Really, I did. Then why am I being punished? Why did all my sons have to die? शून्य शून्यता का एहसास हो रहा है मुझे, एक अंतहीन शून्यता
ऐसा जैसे हर पल मेरा पीछा कर रही हो। बोध होता है कि जैसे मैं किसी अंधेरे कुएं में जन्मों जन्मों से कैद हूं और कोई भी मेरी खोज को नहीं आ रहा। ये पहली बार नहीं है कि जीवन मुझे ऐसे मोड़ पे लेकर आया है। बार बार बहुत बार आ चुकी हूं मैं यहाँ, जहां मेरा कोई प्यारा, कोई अपना मृत्यु के समकक्ष खड़ा हो। मृत्यु, मृत्यु पता नहीं कितने और लोगों को ले जाएगी वो मुझसे। आप तो परिचित होंगे मेरे पति से। उनके जैसा तेजस्वी, सौम्य, सुंदर, शांत स्वभाव का व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, और उसी व्यक्ति की जीवंत आंखों को निस्तेज होते देखा है मैंने। विच्छेद की पीड़ा भी सही है मैंने। मेरे नन्हे फूल से बच्चे को जब नदी में बहाना पड़ा तो मैं उस पीड़ा से कभी उबर ही ना पाई। ऐसे मत देखिए मुझे। एक कुंवारी लड़की का मां बन जाना तो आप लोग आज भी स्वीकार नहीं करते। मान मर्यादा समाज के नाम पे उसे जीते जी मार देते हैं और मुझे दोष दे रहे हैं। मैं क्या करती? हस्तिनापुर के राजकुमार से कहती कि वो मुझे और मेरे बच्चे को एक साथ स्वीकार करे। आप कर लेते स्वीकार मुझे। चलिए छोड़िए, आपका उत्तर पता है मुझे। अफसोस है तो केवल इस बात का कि मैं उसे कभी अपना ही ना पाई, बस भागती रही अपने सच से। मेरा पुत्र, मेरा कर्ण, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी माँ हूँ, कभी समाज के सामने मुझे माँ कहकर न बुला सका। उसने मेरी मर्यादा का मान किया, पर मैं अपनी ममता का मान न रख पाई। चारों तरफ तो मौत का माहौल है और हम यहाँ घिस घिस के चांदी चमकाएं। जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो इतने रखरखाव का क्या फायदा? वही तो, हर रोज इन दम तोड़ते खंडरों की सफाई करो, मरम्मत करो, दिए जलाओ। आखिर किसके लिए? हाँ, आखिर किसके लिए? किसके लिए बताओ? वैसे इतना पाप किया है तो उसका फल मिलना ही था। कर्म करे कोई और भोगे हम सब। हाँ, भोगे हम सब। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ। अरे क्यों अच्छा? अब तो महल में शांति बनी रहती है। पहले षड्यंत्र होते रहते थे। हाँ, षड्यंत्र होते रहते थे। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बातें कर रही हो तुम सब? अपनी हद में रहो। इस महल के लोगों के लिए तुम्हारे मन में चाहे जैसी भी भावनाएं हो, पर ये कभी मत भूलना कि हमारे अन्नदाता हैं और हमारा काम इस महल और इसमें रहने वालों की देखभाल करना है, और इस काम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये अच्छा है, इन्हें हमारी पड़ी हो या ना हो, हमें तो बस चुपचाप मुंह बंद करके काम करना ही होगा। मेरा अन्नदाता मेरा भगवान है और कोई नहीं। जो सच है वो भी न बोले अब। हद है। हाँ, वो भी ना बोले अब। चलो। इन्हें क्या पता, ये नई नई लड़कियों को क्या पता इस हस्तिनापुर के महत्व के बारे में। मैंने देखा है इस महल को चमचमाते हुए। जो गांधारी और कुंती यहाँ पहली बार बहू बन के आई थी, जब सारे बच्चे, वो नन्ही दुश्शला, सारे राजकुमार एक साथ इसी आंगन में खेला करते थे, उन स्वर्णिम दिनों
और चांदनी रातों को। अपनी जवानी के दिनों में आई थी मैं, 16, 17 या 20 की होंगी। तब से लेकर आज तक पूरी निष्ठा से काम किया है मैंने। अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर मेरा चलता नहीं, पर दिल से हमेशा प्रार्थना करती हूँ यहाँ सब राजी खुशी रहें। अब आप ही बताइए, कौन से घरों में भाइयों में झगड़ा नहीं होता, कौन से परिवारों में नहीं होता मनमुटाव। अम्मा जी, अब तो सब मर गए। बड़े बड़े लोगों की बातें आप और हम जैसे लोग कहाँ समझेंगे। मैं तो बस इतना जानती हूँ, मैंने इनका नमक खाया है और मरते दम तक इनकी सेवा करूंगी। अरे क्या जला दिया? एक काम नहीं होता इन लोगों का मेरे बिना। सारा दिन बातें करती हैं, जब देखो खी 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 खी। ये कौन है? What's up with this new age writer? Why is she doing this to us? I mean, you are right. Vyas left us without any dialogues in his mythology. He could write a 2 lakh verse poem without mentioning a word about us. And ये playwright, ये आज की लड़की, even she comes and ties us up. Maybe they were trying to prove a point through us. Oh, can you not? Stop over empathizing with these writer people. They are no good. They write what they feel like without being bothered about how that makes us feel. Even if we are fictional, it doesn't mean we don't have a heart. I am so not following this script this time. अपने जीवन की हर सच्चाई सबको बताऊंगी मैं. My brother wasn't a good man. He was mean and corrupt. And my parents knew that. पर उन्होंने क्या किया? आराम से हस्तिनापुर की राजगद्दी पर आंख बंद कर कर बैठे रहे, जैसे कि उनको पता ही नहीं है कि उनके पुत्र क्या सर्वनाश कर रहे हैं. And me? Did my parents really ever care for me? अगर उन्होंने मुझ पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो हस्तिनापुर का विनाश तो मैं कभी नहीं होने देती. Do you people even know me? मैं कुशला, 100 कौरव और 5 पांडवों की इकलौती बहन हूं मैं. And just to apprise you, I am the only female matriarch to find a mention in the Mahabharata. So I definitely was a better choice, wasn't I? Why was I invisible, unheard, ignored, and unloved? मैं भानुमति, जानते हैं आप मुझे? When I got married to Duryodhan, I thought of creating a beautiful family with my husband. Like most women here, think about marriage. मेरी माँ खुश थी कि मेरी शादी इतने बड़े परिवार में हो गई थी. Little did she know, each day as I lived,
I had to breathe the air that reeked of envy. The food I ate tasted like ash. The jewelry of gold and silver felt like chains drowning me in the sea of sadness. My husband, जिनका हाथ पकड़ के मैं इन महलों में आई थी, cared more about seeking revenge than loving me. I often wondered, sitting through cold, quiet nights, when my husband was busy conspiring with Shakuni, why? For what purpose was I even brought into this family? Why was I invisible, unheard, ignored, and unloved? Maybe not having words to express oneself, not having anyone to listen to your suffering is a good thing. क्योंकि ऐसे शब्द ही नहीं है जो मेरी व्यथा को, मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को समझा सके, व्यक्त कर सके. मैं विशाली, what should I grieve about? Should I speak about the pain of innumerous wounds my husband survived through his life? How his own mother, his own brothers, his father, the gods themselves abandoned him. His guru abandoned him. कर्ण, श्रेष्ठ कर्ण, दानी कर्ण, महान, इतना ऊंचा व्यक्तित्व जितना कोई हो भी नहीं, परंतु जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है. जीवन भर हर भार को स्वयं ढोता है, चेहरे पर मुस्काने चिपका मन ही मन रोता है. My heart breaks into 1,000 pieces even to imagine how that pure soul was ruined by this cruel world. How he kept giving himself to anyone who showed even 1 ounce of love towards him. How the one friend he made used him for his loyalty, generosity, and goodness. क्या मिला मुझे? क्या मिला? Other than the honor of being a wife of a warrior. काश मैं अपने पति के साथ युद्ध क्षेत्र में जा पाती, या उन्हें इस विनाश की ओर जाने से रोक सकती, या शायद अपनी ही कोई राह चुनती. I could have lived my life on my own terms instead of sitting in anxious anticipation of my husband's every move. मेरा क्या? Why was I invisible, unheard, ignored, and unloved? Shore of an ocean, witnessing the large boat filled with people sinking at a very slow speed. और यहाँ तो कोई भी नहीं है. It's just me, alone, frozen, staring as the dragons of death descend over the raging waters, swallowing them all. पिछले 20 दिनों से मुझे लगातार यही महसूस हो रहा. आंखों के सामने विनाश नजर आ रहा था. I could not do anything. Nothing. अपने सच के साथ जीना इतनी बलिदान क्यों मांगता है आखिर? All we wanted was to live happily. 6 of us and our children. का ये राजपाट कुछ भी तो नहीं चाहिए था हमें. We gave them all. Yet they could not let us be.
एक्चुअली सारा कसूर उनका नहीं था. My husband's, especially the eldest one, he too is responsible for all this. What? What did you say? I shouldn't be speaking ill of my husband's? You dare say that? Don't you dare? Don't you dare to tell me that husbands only need to be respected by their wives. पति परमेश्वर की तो पूजा होनी चाहिए बस. Mine sold me. दाव पे लगा दिया था मुझे, जैसे मैं जायदाद का कोई टुकड़ा. अपने परिवार को अच्छी तरह जानती थी. He knew his cousins, his uncles, that शकुनी मामा जानते थे और उनकी सभी मंशाओं को अच्छी तरह पहचानते भी थे. फिर भी he went on to play that stupid game. He should have kept us safe. Me safe, पत्नी हूं मैं. चलिए विजय, I don't expect you to understand any of this because you have learned nothing from my story through centuries. Many of you still keep repeating the same mistakes from the past. हर बार वही गलती. Treating women as if they don't matter. Well, I have enough anger and grief in my life to bother about your opinion of me. But what should I do now? Do I have the strength to hold the grief of my loved ones dying? आंसुओं के कितने महासागर इस शोक, इस मातम को अपने आप में समेट पाएंगे? And I cannot listen to the constant wail of women from outside. Their cries are piercing through the walls, haunting me day and night. कोई चुप कराए इन्हें. कुछ तो करना पड़ेगा. वो हजारों लाखों बच्चे जो क्षणों में अनाथ हो गए, कहां से लाऊंगी उनके सर पर पिता का साया? And my own children, my wonderful, loving Ghatotkaч, मेरा अभिमन्यु. Will I have to carry the burden of these unnecessary debts all through my life? This wretched war has already ruined me and everyone around me, leaving us bruised and bleeding. परंतु इन घावों को भरना तो पड़ेगा. But how? What do I tell this daughter-in-law of mine? Grief cannot be judged, evaluated, or measured. All loss is loss. There is equality in death and pain. जीवन चाहे बराबरी करे या ना करे, लेकिन मृत्यु के लिए सब बराबर है. पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को ये दुनिया जानती क्यों नहीं, समझती क्यों नहीं? और अगर समझती है तो फिर मन से मानती क्यों नहीं? Uttara did not deserve to lose her husband this early in her life. Her child will be born without a father. What do I tell her? How do I console her? Are there words enough to express this grief? I wonder. व्यर्थ है व्यथा की वेदना पर आलाप, भरने वाला नहीं अश्रुधारा से ये ताला.
रही है? अरे बहुत बड़ी बात हो गई, मेरा तो दिमाग ही भन्ना गया है। क्या हुआ? सीधे सीधे बोल। रत्ना भाग गई घर से। क्या? भाग गई? अरे धीरे धीरे, किसके साथ भागी? कब भागी? क्यों भागी? इतना शोर क्यों मचा रही हो तुम सब? काम करती नहीं हो, सारा दिन बातें बनवा लो तुम लोगों से। अम्मा जी, पता है क्या हुआ? रत्ना घर से भाग गई। जाके काम कर, भाग गई घर से। Mother, mother, where are you? अगर आपका अंधा और बहरा होने का नाटक खत्म हो गया हो, then let's talk. Dushala, have you forgotten who you are speaking to? हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया कि आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी। शब्दों से खिलवाड़ मत करो दुशला। Obviously, I am your mother. Yes, it is obvious. It is so obvious that I forgot what a bad mother you have been to me and how deeply hurt I am. Dushala, I don't have time for all this. I am already in much pain. Your brothers, they're all gone. I am hurt. Go away. मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मेरे लिए तो कभी वक्त ही नहीं था आपके पास। और मेरे भाई, क्या लगता है आपको? कौन है उनकी मृत्यु का जिम्मेदार? मैं? Am I responsible for the death of my children? How dare you say that, you wretched girl? सच बहुत कड़वा होता है ना माँ? कोई सच्चाई नहीं है तुम्हारे शब्दों में। You have simply gone crazy after the war. You should have burnt on the pyre with your husband. Why didn't you die? What more do I expect from her? मेरा दर्द सुनने से बेहतर तो मेरा मर जाना है इनके लिए। Truth has never been my mother's companion. Her delusions keep her safe. She stays happy in the land of her fallacies. This woman, she is incapable of any love. It might appear that she is mourning the death of her sons, but in reality, she is mourning her crushed ego. She is mourning her crushed ambitions. People like her never love anybody but themselves. Dushala, my daughter, I didn't mean it. I didn't mean it. Thank God you are alive. Thank God at least one of my children is alive. One of your children? Am I one of your children? Of course you are. You are my only daughter. I have always loved you. याद है तुम्हें जब तुम बहुत छोटे थे? One of your brothers had broken your toy. कितना रो रही थी तुम? हाँ, और आपने क्या किया? मुझे झिड़क कर कहा, लड़के ऐसे ही होते हैं, ये उनका प्राकृतिक स्वभाव है। तुम्हारे पास कितने सारे खिलौने हैं, जाओ किसी और खिलौने से खेलो। But that is not true. The very next day, I ordered the potter to make 100 dolls for you. I would always choose the finest silks to make clothes for you. और जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें चमचम बहुत पसंद है, I ordered the royal cook to
to make it for you every day. I have always loved you. Don't you know that? हाँ, आपने मुझे हर वो चीज दी जो धन से खरीदी जा सकती है। पर क्या कभी मेरी भावनाओं को समझा? Did you teach me skills to bring me at par with my brothers? You fought for them. Did you ever value me enough to fight for me? In fact, as if to get rid of me, you got me married at an early age to a man just like my brothers, greedy and corrupt. How was I, the daughter of a royal family, any different from a beautifully dressed doll who is kept in a glass cage and discarded when bored off? But I don't समझती क्यों नहीं हो? I am not done yet. You allowed my brothers to do whatever they wanted with their lives, to the point that they became selfish and abusive. You knew that Shakuni, your own brother, was corrupting them, but you did nothing. Forget about it. When our Draupadi was being assaulted in full court, you did not utter a word. Did you lose your tongue too? And after all this, you went ahead and blessed Duryodhan with a boon? कैसी माँ हैं आप, जो स्वयं ही अपने पुत्रों को मृत्यु की तरफ धकेलती है? Stop, your words are killing me. नहीं माँ, आज तो मुझे बोलना ही होगा. Even if you behead me afterwards, एक माँ का काम आसान नहीं होता, खास तौर पर एक राजमाता का. A mother's job is to morally guide her children, so they learn to sacrifice their own pleasures for the greater good. But alas, we lost all my brothers in a meaningless war. Stop, have pity on me. Have pity on me. And lastly, I have to confess for my own flaws. I didn't rebel. I didn't protest. I was spineless. अन्याय सहना भी अन्याय करने जितना ही बड़ा पाप है. It took me a war, meaningless, numerous deaths to come to my senses. I am ashamed of myself. Oh, how I loathe myself. I didn't come here just to accuse you. Today I came as a daughter to her mother. Though all is lost, something can still be saved. अब तो आंखें खोलो माँ.
क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बैठी थी। इन पुरानी चीजों को बस ऐसे ही। एक बात बताओ, हम दोनों ने एक दूसरे से अपने मन की बात आखिर वक्त कब की? अपने मन की बात कुछ याद नहीं पड़ता कि कभी हमने ऐसी बातें भी की हो। युद्ध के पश्चात बड़ी बड़ी घटनाओं के चलते बाकी बहुत कुछ जैसे धुंधला सा पड़ गया। लेकिन आप और मैं, तुम और मैं रुक क्यों गई? कहो। जितना मुझे याद पड़ता है, आपने और मैंने कभी अपने बारे में बातें नहीं की। हमारे रिश्ते में तो वो जगह कभी बनी ही नहीं। सही कह रही हो। तुम बहू और मैं सास, बस यही रिश्ता है हमारा। उसे माँ और बेटी का रिश्ता मैं कभी बना ही नहीं पाया। लेकिन आज अचानक से ये बातें क्यों ना? कुछ हुआ है क्या? वैसे तो कुछ भी नहीं, पर देखा जाए तो बहुत कुछ। बहुत दिनों से अपनी दासी और उसकी सास को देखती हूँ। सास डांटती है, फिर गले में लगाती है। दोनों मिलके बहुत हम सबकी चुगली भी करती हैं। एक साथ खिलखिलाकर हंसती हैं और जल्दी से काम निपटाकर घर को जाती हैं। एक बार बहू से कुछ टूट गया, पर मजाल हो किसी की कि कोई बहू से कुछ कहे, सास ढाल की तरह आकर बहू को बचाने लगी। उस दिन एहसास हुआ वो सास ऐसी भी होती है। अब जब महल खाली हो गया है, जो कुछ संजो के रखना चाहा था सब हाथ से छूट गया है। तो इस नए वातावरण में बहुत कुछ नया सा दिखता है, जो पहले अनदेखा अनसुना सा रह जाता था। सुनकर अच्छा लगा उनके इस प्यारे से रिश्ते के बारे में। तुम और मैं यहाँ बहू बनकर आई। मुझे अपनी सास के साथ रिश्ता निभाने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस विशाल भवन के पेचीदा रहस्य समझते समझते मैं कब बूढ़ी हो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पति का स्वर्गवासी होना, मेरे पुत्रों का संघर्ष, कर्ण का वापस आना। जब तुम आई इस परिवार से जुड़ी तो मुझे तुम्हें क्या सीख देनी चाहिए, कैसे सावधान करना चाहिए ताकि तुम एक बहू के कर्तव्यों का पालन भली भांति कर सको, बस यही सब सोचती थी मैं। द्रौपदी कौन है, उसे क्या पसंद है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसके क्या सपने हैं, उसकी आकांक्षाएं, ये कभी कुछ सोचा ही नहीं। आपको न जान पाने का अफसोस है मुझे। हस्तिनापुर की बहू मेरे पतियों की माँ या मेरी सास के रूप में नहीं, कुंती को जानने का बहुत मन हुआ। जब कभी माँ की याद आई, उसकी कमी महसूस हुई तो लगा कि आपके पास दौड़ कर आ जाऊं। तब तक तो आपके और मेरे बीच कई तनाव आ चुके थे। अर्जुन जब मुझे ब्याह कर लाए तो आपने तो कह दिया था जो भी लाए हो दो पांचों भाई आपस में बांट लो। और वो राजी भी हो गए। जीवन में पहली बार मुझे एक वस्तु होने का बोध किया। आपने मुझे देखकर अपना वचन क्यों नहीं बदला? आपके पुत्र राजी क्यों हो गए? और मैंने क्यों आपकी आज्ञा का पालन किया? इन प्रश्नों के उत्तर आज भी ढूंढती हूं। क्रोध और दुख और भी अधिक हो गया जब भरी सभा में मेरे वस्त्र हरण के समय आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आपके वो पुत्र जिन्होंने अपनी मां के कहने पर एक स्त्री को आपस में बांट तो लिया, पर समय आने पर उसी स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ रहे। तब आप क्यों नहीं बोली मां? क्यों नहीं दी आज्ञा अपने पुत्रों को इस अनर्थ को रोकने की? काश उस दासी की तरह मेरी सास भी मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती तो मेरी वो दशा न होती।
आप सबसे निराश होकर जब मैंने माधव का आवाहन किया तो मन ही मन आप सबको त्याग। उस दिन की पीड़ा आज तक साथ है मेरे। अपने आप को क्षमा नहीं कर पाई हूं मैं। तुम्हारी सदा अपराधी रहूंगी। तुमने एक बहू के रूप में, एक माँ और प्रजा की रानी के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का पालन भली-भांति किया। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत का सम्मान करती हूँ। अगर हम कुंती और द्रौपदी, बस कुंती और द्रौपदी की तरह मिलते शायद कुछ अलग होता। हाँ, बहुत सी गलतियां होने से बच जाती। ये क्या है? ये आपने दिया था जब मैं पहली बार इस घर में आई थी। हाँ, ये दीदी ने दिया था मुझे। बड़ी माँ ने? हाँ। और ये नन्ही सी पोशाक, ये तो मेरी सुतसूम का पहला वस्त्र है माँ। पर क्यों भागी होगी वो? अभी कुछ दिन पहले तक तो कितनी ही खुश थी। पति जो बच गया, अरे अपाहिज था, युद्ध में जाना ही नहीं पड़ा। हर वक्त एक माथा सिंदूर लगा के आती थी। मुझे तो इतनी जलन होती थी ना। उसका पति तो उसे मारता भी नहीं था, पता नहीं क्यों भागी। मेरा ऐसा बसा बसाया घर होता, अपाहिज या जुआरी, कम से कम जिंदा पति तो होता। मैं कभी भागने की सोचती भी नहीं। हाँ, मैं भी नहीं सोचती कभी भागने की। You haven't left us yet. यहीं हो? Why is it that in this moment of turmoil, I think of you? सोचने वाली बात तो है। The actions of my life do not let me leave this world in peace. Will you not ask me about those actions? I would like to hear from you. मैं जानना चाहती हूँ, बताओ तो। So, I was brought up as a fisherman's daughter on the banks of Yamuna. Catching fish and collecting customers for my father was the only thing I did all day. Just that was my life. हमारे पास इतना था कि हम एक ठीक ठाक जीवन जी सके, पर मुझे न जाने क्या अभाव खटकता रहता। समय आने पर शांतनु से भेंट, उनसे मिलके ऐसा लगा कि मैं केवल एक मछुआरन नहीं हूँ, मुझे भी सपने देखने और उन्हें साकार करने का पूरा अधिकार है। मत्स्यगंधा महलों की रानी बनी, अत्यंत सुख मिला।
पर मुझे तो कुछ और चाहिए। मुझे बहुत कुछ और चाहिए था। बस मेरे सपनों ने ऐसी उड़ान भरी कि धरातल ही छूट। मैंने ही भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में बांध दिया। सिंहासन तो छीना ही, उसे पारिवारिक सुख से भी वंचित कर दिया। और तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा रत्न, वह सहर्षी पितृ भक्ति में अपना पूरा जीवन दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गया। सिंहासन और साम्राज्य दोनों का अधिकारी वह था, पर सब कुछ त्याग हमारा ही सहारा बना रहा। गंगा मुझे माफ कर। And all this while, I thought I was being aspirational. और मुझे इससे भी संतोष न हुआ। अपने पुत्रों का विवाह करने के लिए मैंने कुमारियों का अपहरण कराया, और फिर जब उनकी संतानें उत्पन्न हुई तो बलपूर्वक नियोग से उनके शिशु उत्पन्न कराए। And today, ironically, when I'm no more, and I float in this universe like a dry, dead leaf, there is a region in my heart which is hollow always. You have indeed come a long way, Satyavati. Very few people see their own truth. I did not see my truth for a very long time. Even on my deathbed, I was so proud to have done what I did to perpetuate it. And when I hear the cries and howls of those that I got into this world, I burned with hell's fire. How did you, Huh? how did you leave them? Did being a queen, a wife, and a mother mean nothing to you? मुश्किल था, बहुत मुश्किल. But I guess being immortal made it a bit easier to choose. I have lived through ages, seeing people come and go. The dynasties have been built and crumbled before my eyes. My waters have turned red with the blood of entire clans. बहुत कुछ देखा है मैंने. I knew everything is impermanent and I matter because I give life to millions. और ऐसा नहीं कि मुझे शांतनु से प्रेम नहीं था. I did love him, even though many men offered their love to me. The way Shantanu made me feel loved, I had never felt before. But I knew it was not forever. You humans are never satisfied with one thing. एक चाह पूरी होते ही दूसरी जग जाती है. Just like you. Shantanu wanted more. उसे अब एक बेटा चाहिए था. So I gave him the son he so desperately wanted. And then he wanted more. He wanted you. Satyavati, it was indeed difficult to let my son go. पर सच मानो उससे भी मुश्किल था. तुम्हारे और शांतनु के हाथों हस्तिनापुर को बर्बाद होते हुए देखना. Why did you not warn us then? Really? Would you have listened? तुम अपनी चाहत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे. और शांतनु तुम्हें पाने के लिए कुछ भी खोने को. Greed. Greed is not a good listener, my dear. अब अतीत में देखूं तो ऐसा लगता है कि शांतनु से विवाह करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी. ना ये रिश्ता होता और न ही इतने लोगों का विनाश. It would have been the same. We take all that ails us with us wherever we go.
अगर शांतनु नहीं होते तो कोई और होता जिससे तुम छल करती। तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी और को प्रतिज्ञा में बांध देते। The actors would have been different, but the roles, the stories, your greed, all of it would be the same. So there's never any hope for me. Can't say that for sure, Satyavati. Though, I know this. Unless humans cure what ails them within, no matter where they go, they bring destruction and doom. सत्यवती, मनुष्य को चाहिए कि वे जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गड़े, कितना भी ऊंचा उठे, ना धरातल ना छोड़े, मनुष्यता के स्तर से ना गिरे। तुम ठीक कहती हो, मैं तो मनुष्यता के स्तर से ही गिर गई। You are very kind, Ganga. If I get to have another life, I will purge and repent. It is precious that you have realized, क्योंकि आत्मबोध ही हमारी मुक्ति का द्वार है। सुना क्या? क्या 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 क्या? अंततः दूसरे गांव के कुम्हार के साथ भागी है। मुझे तो पहले ही पता था, कुछ ज्यादा ही खुश दिख रही थी, वरना शादी के इतने साल बाद अपने पति के लिए इतनी लटक मटक कौन करता है भला? हाँ, इतनी लटक मटक थोड़ी ना होती है। मुझे देखो, 2 साल में सूखकर बंजर जमीन सी हो गई हूँ। लीलता बगीचा बन के घूम रही थी वो। अरे कहे तो मैं बारिश करवा दूं। ये कौन आ रहे? इतना हरा हरा सा। युद्ध में सभी का यही हाल हो चुका है। कौन है ये? चलो। सब कुछ अर्थहीन लग रहा है मुझे। क्यों? ऐसा क्यों? मुझे तो उल्लास में होना चाहिए, मदिरा पान कर संगीत के साथ आनंद में रखना चाहिए। फिर क्यों ये शून्यता, ये खालीपन मेरे मन को कचोट रहा है? क्यों मेरा मन इतना व्याकुल, इतना उदास है? आप लोग, क्या आप लोग जानते हैं इस व्यथा को? जब एक मनुष्य पूरे मन से किसी चीज को पाने की कोशिश करे, अंततः उसे पा ले, फिर भी उसे सुख का एहसास ना हो, ऐसी अनुभूति हुई है कभी आपको? मुझे हो रही है। व्यर्थ लग रहा है सब कुछ। नहीं, मुझे गलत मत समझिए। भीष्म को मारना गलत नहीं था। भीष्म को मेरे हाथों मरना ही था। I was happy in my life, ready to marry my love, Shal. When Bhishma abducted us, and you all know what happened after that. When a woman is abducted, abused, molested, or raped, is that her fault? Then why a woman is punished for that? भीष्म को मारना व्यर्थ नहीं था। भीष्म को मेरे हाथों मरना ही था, और भीष्म को मारना मेरी नियति थी। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे,
बिल्कुल अफसोस नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मेरे जीवन के मायने प्रतिशोध और प्रतिशोध की पूर्ति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए। ये कैसा जीवन हुआ जिसके जीवन का उद्देश्य किसी और की मृत्यु हो? जीवन में और भी उद्देश्य होते हैं, और भी कर्तव्य होते हैं। सुख प्राप्ति के कितने सुहावने रास्ते होते हैं। फिर ये कैसा जीवन हुआ जो केवल प्रतिशोध और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रहा, बस जलता रहा। और अब जब प्रतिशोध ले लिया, युद्ध समाप्त हो चुका है, तो मुझे मेरा जीवन अर्थहीन क्यों लग रहा है? सत्यवती के लोभ ने, भीष्म के मिथ्य कर्तव्य पालन की भावना ने, शाल्व के झूठे प्रेम ने, और इस जगत में एक त्यागी हुई नारी होने के सत्य ने मेरे भीतर एक प्रचंड प्रतिशोध की ज्वाला को जागृत किया है। पर यह अन्याय क्यों? इनमें से अगर किसी एक ने समझदारी से काम लिया होता, सही राह चुनी होती, तो आज मुझे अपने इस जीवन को यूं प्रतिशोध की ज्वाला में ना जुटाना पड़ता। आखिर हस्तिनापुर के भाग्य में मेरा नाम क्यों जोड़ा गया? अत्याचार से प्रतिशोध जन्म लेता है, और प्रतिशोध की भावना से और अत्याचार जन्म लेता है। क्या ये बात इन लोगों को नहीं पता थी? अब मुझे अपने इस व्यर्थ जीवन के आने वाले कई वर्ष व्यथा, ग्लानि, पीड़ा की भावनाओं से जूझते हुए बिताने पड़ेंगे। यही मेरी नियति है, यही मेरी नियति है, यही मेरी नियति है। माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा क्यों? पुत्र की मृत्यु का शोक जीवन में सबसे अधिक पीड़ादायक होता है, और भीष्म की मृत्यु कर मैंने आपको वह पीड़ा दी है। तुम कुछ भूल रहे हो शिखंडी। मैं मनुष्य नहीं, परंतु भीष्म तो मनुष्य था। किसी न किसी दिन ये समाचार सुनना ही था। यह तो नियति थी, इसे होना ही था। आपको क्रोध नहीं आ रहा मुझ पर? क्रोध? भीष्म के कर्म ने उसकी नियति को निश्चित किया। इसमें किसी और का क्या दोष? अपने शोक को क्रोध में परिवर्तित कर उस शोक की मर्यादा को खंडित नहीं करना चाहती मैं। पर तुम्हें देख के दुख जरूर हो रहा है। क्यों इतने विचलित हो? जीवन में कोई आशा नहीं है अब, सब अर्थहीन लग रहा है। इस लक्ष्य विहीन जीवन का क्या लाभ? लक्ष्य वो तो बनाने से बनता है, और चाहो तो हर रोज नए लक्ष्य बनते। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अब जब तुम्हारा भाग्य हस्तिनापुर के भाग्य से जुड़ ही गया है, इस महायुद्ध का हिस्सा तुम बन ही गए हो, तो प्रतिशोध के अलावा तुमने और भी चीजें देखी और सुनी होंगी। मैं शायद अपनी व्यथा में इतना अधिक उलझा हुआ था कि कुछ और जानने समझने का अवसर मैंने अपने आप को दिया ही नहीं। तो अब देख, एक एक व्यक्ति के जीवन को देखो। गंगा से लेकर उत्तरा तक, भीष्म से लेकर अभिमन्यु तक, और
जवाब ढूंढो। क्या धृतराष्ट्र की नियति सच में उसके अंधे होने पर निर्धारित थी, या अपने कर्मों से उसने यह विकल्प चुना? क्या गांधारी, भीष्म, कुंती, पांडुपुत्र और द्रौपदी चाहते तो इस स्वस्थ साम्राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते थे? शिखंडी, अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ और इसका मुझे बहुत दुख है। पर पुत्र, यही तुम्हारा अंत नहीं? क्या हुआ होगा रत्नाका? क्या हुआ होगा रत्नाका? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, बिना कुछ बोले वो चली कैसे गई? क्या बोलकर जाती कि कुम्हार के साथ भाग रही हूँ, मेरा पति और 2 बच्चे छोड़ के जा रही हूँ, संभाल लेना। ये भी ठीक है, क्या बोलकर जाती वो भी? पर गई क्यों? उसकी अपनी वजह होगी। पर क्या वजह? जब तक ये बुद्धि सुलझा नहीं लेती मेरा तो खाना हजम नहीं होता। सुबह जो गरम गरम रोटियां ठूसी और लंबी लंबी डकार ली, और पथरने की वजह से ही आई होगी तुझे। हाँ, उसकी वजह से आई होगी डकार। रत्ना घर से क्यों भागी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पहली नहीं जिसका इन झंझटों से भागने का मन किया हो। हम सबकी जिंदगी में क्या रखा है? बचपन में तो शादी हो जाती है। मैं 14 की थी, मैं 16, मैं 13, मेरी 9। मुझे तो मायका ही याद नहीं। शादी होने की देर नहीं होती और बच्चा आ जाता है। मुझे तो संभोग का मतलब 3 बच्चों की माँ बनने के बाद ही पता चला। अच्छा, उसे तो पहले ही पता था, वो तो सीखा सिखाया था। पति लोग जुआ, दारू, बाहर की औरत, ना जाने क्या क्या मजे की चीज करते हैं। और वो भी ना हो तो अपने हिसाब से टहलने ही चले जाते हैं। 2 पल को दिल ही बैठ जाता है। और हम सारा दिन यहाँ काम करती हैं, फिर हमें घर जाके बिलखते बच्चों को छाती से लगा के सुलाना पड़ता है। हमारे पास तो दिल बहलाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। क्यों ऐसा? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारा दिल नहीं है? पता है, एक बार मुझे भी किसी ने प्यार भरी नजरों से देखा था। हाँ, पति के लिए तो मैं कभी खास न थी, पर कोई था जिसने मुझे औरत होने का एहसास दिलाया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। शायद हाथ थाम लेता तो मैं भी। रत्ना ने एक पल के लिए सही अपनी खुशी तो चुन ली, दुनिया चाहे कुछ भी करे। हम में से एक तो आजाद हुआ, चाहे किसी का हाथ थाम के सही। चलो, बहुत काम पड़ा है, जल्दी जल्दी सब्जी साफ करो। और वो लड़की कब से आएगी? नहीं अम्मा जी, वो तो कल से आएगी। अच्छा, चलो सही है। सही तो है, लेकिन 3 महीने पेट से है, अभी करना था इसमें। The daughters and the daughters-in-law of this family have wronged ourselves too. We never protested when our parents treated us like second-rate citizens to our brothers. Never. No, never. We never questioned why we couldn't lead our kingdoms. Never. No, never. We never thought of going back home when our marriages failed. Never. No, never. We never fought with our husbands to oppose their beliefs and values. Never. No, never. We walked the fine line the patriarchy drew for us. Always walking the fine lines. Always walking the fine lines. We never thought of our values.
Never, no, never. It took us a war, Death and destruction. to think, To pause, to reflect, to ask, to question. Why did we let ourselves be treated like this? We owe ourselves an apology. I apologize to myself. I should have fought for my right in the kingdom. I should have left my husband. I should have stood for my values. I should have stayed true to myself. We are sorry to ourselves and to all the generations of women who have come after us. We did not set good examples for you. I have wronged many people, especially my children. क्या अपनी आंखों पे पट्टी बांधना उचित था? I robbed my children of having an involved mother. Dushila, my daughter, you would have made a wonderful ruler had we given you the opportunity. We, your father and I, are sorry. Bhanumati, how could we even think that marriage was the cure to Duryodhan's madness? Can a wife fix that? I should have known better. Draupadi, how can I even ask you to forgive me? I do not deserve your forgiveness. माँ होने के बहुत से कर्तव्य होते हैं। यह तो निश्चित है कि मैंने अपने कर्तव्यों का पालन ढंग से नहीं किया। मेरे जीवन के सारे निर्णय भय से प्रभावित थे। मैंने अपने पुत्रों को शिक्षा देते वक्त भय से जन्मी चिंताओं को प्राथमिकता दी। मैंने उन्हें आज्ञाकारी बनने का ज्ञान तो दिया, पर आज्ञा के बंदी न बनो ये बताना ही भूल गई। ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो अपने निकट जनों के सम्मान की रक्षा न कर सके। My lovely little girl, I'm so sorry. I failed to protect you and your husband. We failed to protect you. The past has been painful. हम सब ने गलतियां की हैं, but we cannot keep looking back at grief anymore. There is a whole future waiting to be built and protected. Not only my future, but all the women of this land. They are suffering. राज्य की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भूख और लाचारी से बेहाल हैं। युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हम तो महल में काम करते हैं, अपने परिवार को पेट पाल सकते हैं, परंतु राज्य के बाकी परिवारों का क्या? हमें अपने हस्तिनापुर को इस त्रासदी से उबारना होगा। Right? Women need to work. And to work, they need to learn skills. We also need to give them some immediate support to save them from dying. But how? We have nothing. The royal coffers are all empty after the war. With what resources shall we help them? There has to be a way. And we have to find it. और इसके लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होगी वो है धन। माँ, मेरे इन गहनों से शुरुआत करते हैं। अब ये मेरे किस काम के? हमारे राष्ट्र के नव निर्माण में अगर वो काम आए तो उससे बेहतर क्या होगा? उत्तरा, you're brave, kind and so generous. मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हम सबको तुम पे गर्व है उत्तरा। हम प्रण करते हैं कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जहां स्त्री और पुरुष समान, सुरक्षित, सबल होंगे और सम्मान पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। हौसलों से बड़ा कुछ भी नहीं।
बीते वक्त के गठरों को अब ढोने से क्या, देखो आने वाला वक्त तुमसे कह रहा है क्या। चल उठ फिर से तू भर ले एक जुनून, खाना अपना अपना लहू भर ले एक जुनून। चल उठ फिर से तू भर ले एक जुनून, खाना अपना अपना लहू भर ले एक जुनून। Sound time. Sorry, there is some confusion with the music here. So the play has ended, and all of you, the actors, you can bow now. Don't wait for the music. Neelam, you can take the mic. The other side. The other side, please.